Namah Shivaya. Namah Shivaya. Center. Jai Guruji. As Auntie rightly said, a happy Karwa Chauth to each one of you, whether you are fasting or not. But Guruji is always there and he's witnessing the moment for each one of us, and unki blessings hum sab pe rahe. Um, it could not be a better day to start to share this satsang, that how my journey started with Guruji was because I got married to my husband, and that's when I got connected to Guruji in 2003. Rather I would say that कि मेरी शादी गुरुजी ने ही करवाई है. And to put it across in a layman language, when my in-laws were finding the match for my husband, and they actually looked for many girls, they couldn't find somebody who was basically a right match for him. That's when Guruji actually once, they used to go to GK Mandir prior to forgot the Empire State. They're a very old Sangat. Just to give a little bit of background, that Guruji Maharaj के गांव से belong करते हैं my in-laws, and my husband was barely 2-3 days old when he actually was in his lap. So that's their connection started from. And I find myself at a very extremely fortunate spot that इस कहते हैं कि घोर कलयुग में गुरुजी के दर्शन करने को मिले. But coming back to what I was discussing was that when actually Guruji told my mother-in-law कि क्या हुआ, तुझे लड़की पसंद नहीं आई कोई, तो कहती है, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, all the girls are good, but it's just that there is no match between the couple. And then Guruji asked somebody to get एक थाल लेकर आओ किचन में से, एंड वो लेकर आई एक सेवादार, और उसके अंदर पानी था. एंड गुरुजी टोल्ड माय मदर इन लॉ टू सी द रिफ्लेक्शन व्हाट यू सी इन दैट, एंड नोबडी कुड सी एनीथिंग एक्सेप्ट माय मदर इन लॉ. एंड देयर वाज एक्चुअली 2 लोगों के पाँव थे, जैसे कि फेरे हो रहे होते हैं, राइट, हाउ वी डू इन आवर हिंदू डिसाइपल. सो फेरे हो रहे थे, और उसके अंदर मेरे हस्बैंड के पाँव थे और मेरे पाँव थे. उसमें उन्होंने जिस तरह से रिफ्लेक्शन दिखाया, उसमें immediately she could able to spot that this is my son's feet, because we all have different what do you call body shape and everything. Even आपके हाथ, आपके पाँव, आपका face, आपके features, everything is different. So she immediately could able to spot that that's my son. But then she asked that Guruji, who is the girl? So he said, then you have to find who is this girl now, right? So right after a few other episodes of seeing, they came across to me, and all my mother-in-law was looking at was my feet, nothing else. And it was very weird for me to understand. First of all, I was at a very fragile age. I was barely 21, 22 years old, bilkul na samjhi and whatnot. And I was not at the right mindset also to get married, because there was something happened right before that. So I wasn't even prepared for it. But big story small, when she actually looked at me, the first thing she told Parminder, my husband, is she's a girl. And he said, Mom, stop being dramatic here. We are here for a purpose, so let's first do that. बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, बट छोटी सी चीज़ ये थी कि गुरुजी ने जब मम्मा को मेरे पाँव दिखाए थे, तो उन्होंने एक इमेज को, जैसे कहते हैं ना, कि स्कैन कर लिया था अपनी आइज़ में, अपने माइंड में, अपनी उसमें, कि मुझे एग्जैक्टली यही ढूंढना है. तो उन्होंने जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन किया, इट वाज फनी एज वेल एज वेरी ब्लेस्ड, आई वुड से. उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा कि कोमल, जब मैंने तुम्हारे पाँव देखे, शेप तो चलो जो थी वो तो एग्जैक्टली सेम थी, बट यू वर वेयरिंग एग्जैक्टली द सेम नेल पेंट. एंड दैट वाज समथिंग विच इज़ लाइक cannot be a coincidence in the language of Maharaj, right? And Sangat ji, I can tell you one thing, that I have never changed my nail paint since then. I do go to salon, I do get my nails done, but I always make sure that I'm wearing the baby pink color which I used to wear at that point of time. So that's my love for my Maharaj. I'm too small to share anything. I think हम बहुत छोटे हैं कुछ भी बताने के लिए, क्योंकि इनको समझाना और इनको
सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं. इट्स नॉट. अगर कोई यहाँ पर खड़ा होकर ये बोलता है कि मैंने गुरुजी को अपनी सारी ज़िंदगी दे दी है, मैंने सरेंडर कर दिया, आई बिलीव विद ऑल द जनरosity दैट इट्स नॉट पॉसिबल. हम में से कोई भी काबिल नहीं है कि हम गुरुजी को कुछ भी सरेंडर कर सकें. सिर्फ जो मैंने सीखा है, आई एम 43 years old today and I was 22 years old when I got connected. In the span of all these decades, what I have learned is that all we can give is love, not just to Maharaj but to each one of us who is actually going through the tough phase, because we live in the Kali Yuga wherein, you know, life is brutal at times. All we can do is just spread love, and that's what I have actually learned from Maharaj. And I'm not saying that I'm standing here to preach anybody, but I'm also in the journey to be the better version of myself with every passing day. And at least I try कि जो महाराज के जो भी उन्होंने हमें थोड़ा बहुत सिखाया, उनमें से ये तो ज़रूर है कि कभी किसी का दिल नहीं दिखाना. Be nice to each one of us, to everybody you come across, because life is actually tough. I can tell that every smiling face, ऐसा नहीं है कि अगर हम गुरुजी से मिले हैं या महाराज का मैंने दर्शन करें हैं तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है. Could be more than anybody else, but it's just that एक चीज़ जो सीख ली है वो ये है कि है ना, पर वो मालिक है हमारे साथ. He's going to be there. It doesn't matter. There have been so many such instances which I can share. I can share just one which is extremely close to my heart, and I think I have shared before also when I was there last time here. And was जब मेरा सबसे पहले महाराज पे भरोसा, जिसे कहते हैं ना कि जो strong हुआ था, extremely strong. And that was actually when Maharaj was not in his chola also. And that was, my daughter was about 1.5 years old, close to 2 years, when she got dengue. And just to go back in the background, she was born in India. We moved to US in 2012, technically 2011 late, but she was born in 2009. And I belong to New Delhi. And I live in Defense Colony, if you're familiar with the area. And हमारे घर के right opposite is the hospital Moolchand, where she got admitted. And her situation was gruesome over there during, as far as I remember. And I saw so many kids getting impacted, and then the mortality rate was really high at that time because there were no beds available and whatnot. Fortunately, we got the bed for her. She got admitted. She was very fragile, and what doctors told at that point of time is that if she is able to get ये रात अगर इसकी निकल गई तो ये बच जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है इसका बचना. It was that bad, and I actually could see because there was no sense in her, and they were all over उसकी body में drips लगे हुए थे and whatnot. सिर्फ और सिर्फ मुझे उस समय एक ही विश्वास था कि गुरुजी आपने ये बच्चा दिया है तो इसको संभाल के रखना. एज अ मदर आई वॉज एक्सट्रीमली इमोशनल, बट देन वो विश्वास मैंने तोड़ने नहीं दिया. लेटर ऑन व्हेन आई वॉज सिटिंग इन ICU एंड व्हेन द डॉक्टर्स केम एंड दे सेड कि अभी थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज द प्लेटलेट्स आर नॉट फॉलिंग इन आउट. I'm sorry to being emotional, but whenever I think about that, even today, it just gives me, more vishwas. At the same time, thank you so much. And excuse me, I'm fasting. Thank you. I hope मुझे याद आ गया एकदम से. Anyways, so मैंने जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि ये रात अगर उसकी निकल गई तो बहुत बस कंटिन्यू टू प्रे. और मेरे लिए तो प्रेयर में कौन है, बस महाराज है. तो मैंने एंड द गुड थिंग वाज कि ICU में सिर्फ एक पेरेंट अलाउड था बिकॉज माई हस्बैंड, इवन दो ही इज़ अ फॉलोवर ऑफ महाराज, बट ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल गाय. ही इज़ नॉट गोना लिसन टू एनी थिंग विच जो आपके दिल ने बोला. वो दिमाग का बंदा और मैं दिल की. सो इट्स लाइक अ गुड कॉम्बो, लाइक आंटी जस्ट सेड कि शादी इज़ ऑलवेज लाइक दैट. तो मैंने जैसे ही उन्होंने बोला और मैंने देखा कि गुड़िया में मतलब तानिया में कोई सेंस नहीं है, कुछ भी वो रिएक्ट ही नहीं कर रही, ना कोई दवाई का ना कुछ का, कुछ भी नहीं था. शी वॉज एक्चुअली जस्ट वॉज इन माई लैप बट नॉट देयर विद मी. इट वॉज लाइक दैट. इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड.
अभी तो पता नहीं कैसे मैं हिम्मत करके आप लोगों के सामने ये सब शेयर कर रही हूँ, बट दैट मोमेंट वाज वेरी सेंसिटिव फॉर मी एंड आई कैन स्टिल सेंस दैट इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, राइट. तो मैंने ना बस माथा, मतलब मुझे याद है कि मेरा कुछ फ्रैक्शन के लिए मेरी नैप मुझे आ गई थी, बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड विद माई बॉडी ऑल्सो, और वो मेरी गोद में थी और मैं सो गई थी. और उस दौरान मुझे महाराज सपने में आए, और ये मेरा पहला सपना था. मुझे कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत खुशबू आती है या कभी मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं, मुझे कभी नहीं होता. इट्स नॉट दैट ही डजंट लव मी, ऑफ कोर्स ही डज. He has equal love for each one of us, but I don't find all these things because he is beyond that for me. But पहली बार गुरुजी महाराज सपने में आए, और सपना भी नहीं था, ऐसा लगा था ऐसे कोई साक्षात आए हैं. मैं तो सपना भी नहीं बोलूँगी उसको. एंड मैंने गुरुजी को हमेशा बहुत ही साधारण और सादगी में देखा है. तो गुरुजी बहुत ही सादे से कुर्ते में थे, सफ़ेद रंग के, और आके बैठे मेरे पास और मुझे बोला कि I'll speak in Punjabi, but I'll narrate myself in Hindi again if anyone don't understand. He said in Punjabi, "इधर ना सारे drip उतार दे, थोड़ी ते तेनु दूध ना ला," which means that just remove all the drips and start feeding her your milk. And being a mother, being 1.5 years old daughter, I was not lactating at that time. Scientifically, it's not possible for me to have feed her. It wasn't possible, but at the same time, मेरा विश्वास था, और मुझे ये पता था कि अगर मैंने अब नहीं माना तो शायद मैं सारी ज़िंदगी रिपेंट कर सकती हूँ. सो एक्चुअली देयर वाज अ बैटल बिटवीन दिल एंड दिमाग एट दैट टाइम, एंड सिंस आई एम अ दिल का पर्सन, तो मैंने बोला कि नहीं, आप बिलीव करिए कि इस मोमेंट पे एज अ मदर मैंने उसकी सारी ड्रिप्स खींच दी. और मुझे ये पता था कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, इट कैन एक्चुअली स्क्रू माई वेडिंग ऑल्सो. वंस आई स्टेप आउट, my family is there and if they get to know, I'm done. But I was not scared because मुझे पता था कुछ नहीं होगा इसको. And this was my विश्वास. इसको कुछ, इसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे वो. अगर उन्होंने उसको दिया है तो उसको लेके क्यों जा रहे हैं मुझसे, राइट? और वही हुआ. Right when I started feeding her, my milk started stimulating. She had my milk and the next day morning शी गॉट डिस्चार्ज. वो अपने पाँव से चल के गई है लड़की घर हॉस्पिटल से बाहर. दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ महाराज, और वो तब जब आप उन पर विश्वास करते हैं. देयर इज़ नो नीड टू सरेंडर. हम कर ही नहीं सकते. आप क्या देंगे गुरु जी को? हम अपना वक्त भी नहीं दे सकते. ऑल द टाइम वी ऑलवेज स्टैंड हियर एंड सेज कि हमें वो टाइम ही नहीं है, आज तो मुझे ये भी करने का टाइम, आज तो मुझे जोत भी जलाने का टाइम नहीं मिला. डू यू थिंक हम कुछ कर पाएंगे उनके लिए? बट आप ऑन द कॉन्ट्ररी देखो, वो फिर भी आपको सुनते हैं, आपका सब कुछ पूरा करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. नॉट दैट इवन अ सिंगल थिंग जो अनसेड एंड अनहर्ड है उनकी उनके दरबार में. कितने मैसेजेस हमें एक दूसरे से मिलते हैं. आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर एंड शेयरिंग दिस. मे बी इट्स फॉर समवन हु इज गोइंग थ्रू द टफ फेज, एंड इफ देयर इज समवन, देन we as a consolidated community of this forum should actually pray for each other and think about कि किस तरह से गुरुजी ने हमारे obstacles दूर करे हैं और कैसे हम उनकी सेवा, उनकी help कर सकते हैं in the form of सेवा to do the same. Coming back on the lighter note, Guruji had an excellent sense of humor, and many a times he used to just joke around, and with his humors he used to lighten up the environment. एंड मेरी जब पहली गुरुजी से पहली या दूसरी मुलाकात हुई थी तो मैंने कभी गुरुजी की आवाज़ भी नहीं सुनी थी, क्योंकि वो कभी प्रीच नहीं करते थे. ही ऑलवेज यूज्ड टू बी, ही वाज अ वेरी साइलेंट काइंड ऑफ अ गुरु. तो मैं मत्था टेकने के लिए जब महाराज के पास गई तो मैंने जैसे ही मत्था टेका, एंड गुरुजी आस्क्ड मी तेरा ना किए, एंड संगत जी आई फॉरगॉट माय नेम, बिकॉज गुरुजी का ऑरा ऐसा होता था कि आप भूल जाते थे कि हो भी क्या रहा है. एंड आई जस्ट फॉरगॉट माय नेम, एंड माय मदर वाज देयर बिहाइंड मी, और मम्मी मुझे ऐसे एल्बो से बोल रही है कि बेटा नाम बोलो. एंड आई वाज स्टन्ड एंड आई वाज ज़ैप्ड एंड आई वाज स्पीचलेस. आई डिडंट नो व्हाट माय नेम इज़, एंड देन अगेन ही आस्क्ड तेरा ना किए, एंड आई फॉरगॉट. एंड राइट आफ्टर दैट मोमेंट गुरुजी सेड, आई प्रिसाइसली रिमेंबर, तू कमली है कि? ऐसा नहीं गुरुजी, कमली नहीं कोमला. So that's how I could able to recall my name in my mind, and this was very, very normal for the folks who knows and who have met Guruji in body form. It's extremely difficult to speak or say something, especially with me, because मुझे
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था कि गुरुजी मुझे गुस्से में देख रहे हैं, मुझे डांट देंगे तो मैं उनकी नज़र से नज़र ही नहीं मिलाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई चोर था या कुछ, शायद समझ ही नहीं थी। I would simply put it across this way. And many other incidents that has happened. I don't know what the time limitation we have here, but yeah. So another very cute one was, just Aarti reminded me, was कि एक बारी मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, and that was my only fear कि मेरी कभी शादी नहीं होगी. Because at that point of time we didn't have the Zomato and whatnot, right? We have the what do you call any food services like that. तो मुझे था कि अगर मेरी शादी नहीं होगी, मेरे को खाना बनाने नहीं आएगा, तो मैं मेरी शादी कैसे होगी and all those things, right? तो मैंने, my husband has been extremely cooperative कि उसने इस चीज़ को कभी भी हाईलाइट नहीं करा. Being a Punjabi guy, let me highlight that. He never complained about these things. बट एक बार मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे, मतलब मन में सिर्फ अरदास क्या करना, मतलब मत्था टेक के सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि गुरुजी थोड़ा बहुत खाना बनाना तो आना चाहिए, सर्वाइवल के लिए भी आना चाहिए. नॉट एवरी डे यू कैन हैव, यू नो, आउटसाइड फूड, और मैगी इज़ नॉट द थिंग विच वी वुड लाइक टू सस्टेन आवर लाइफ विद. एंड मैंने मत्था टेका एंड गुरुजी ने सेवादार को बोला, एम्पायर स्टेट में थे तब, कि इनू ले जाओ अंदर, चाय बनाओ. मुझे चाय बनानी नहीं आती थी. एनीवेज मैं अंदर गई चाय बनाने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता, और क्लियरली बोल दिया गया था कि कुछ बताना नहीं है, जो भी है ये बनाएगी. आप मानेंगे मेरे को अदरक की चाय बनानी थी और मैंने अरबी की चाय बना दी. मुझे उन दोनों के उसका भी डिफरेंस नहीं पता था. मतलब मैं इतनी स्पॉइल्ड थी अपनी ज़िंदगी में. एंड सी द ब्यूटी ऑफ इट कि महाराज ने वो चाय पी, स्माइल दी और मुझे बोला बहुत अच्छी बनी है. लेटर आई रियलाइज व्हाट messed I did and what I have served on table is unacceptable. But जैसे भगवान शिव है, कितना प्यार है उनके अंदर. आप ये तो गलती नहीं है, ये तो मासूमियत है मैं बोलूँगी. लेकिन अगर आप कितनी बड़ी ज़िंदगी में गलती भी कर लोगे, तब भी भगवान शिव ऐसे ही हैं कि आपको माफ़ कर देंगे. नाउ दैट डजंट मीन दैट वी शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड. दैट डजंट मीन कि हम इसको हर्ट करेंगे तो क्या हुआ, माफ़ तो कर देंगे गुरुजी. नो, लेट्स नॉट डू दैट. That's not the way we should, at least I have learned is कि we should take our life कि अब हर गलती माफ़ हो तो जाती है. No. Then you are doing what you want to do, but you are not following the path of what Maharaj has set as a disciple for you, is the way I would like to focus on, or I have perceived this way at least. Many other beautiful satsang, like for example, एक बारी, it was the month of December, it was a very cruel night. I remember it was very very inclement weather in terms of the fog and the ठंड over there. बहुत ही ठंडा दिन था. तो me and my husband's मासी जी, we were there, and my driver, he dropped us, and it was little early for us to actually go inside, but because it was so cold, मासी ने बोला हम लोग अंदर चलते हैं, इट्स फाइन, हम लोग मत्था टेकने चलते हैं, और ऐसे कोई गुरुजी मना थोड़ी ना करेंगे. वी वर जस्ट हाफ एन आवर अर्ली देन द प्रायर शेड्यूल व्हेन द सत्संग यूज्ड टू हैपन. तो हम लोग वहाँ गए, तो गुरुजी वहाँ पर जो एक बन्नी सी बनी हुई है, अंदर घुसते ही एम्पायर स्टेट में, वहाँ पर अपने स्नीकर्स में और शॉर्ट्स में और एडिडास टी शर्ट्स में, बहुत ही क्यूट, पहली बार गुरुजी को ऐसे रूप में देखा. वेरी कैजुअल वे, वेरी हैंडसम गाय, आई मस्ट से दैट. तो ही वॉज जस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड ही सेड कि हल्ली ऐसे ऐसे करके घड़ी देखते थे अपनी, राइट. कहते थे कि अभी तो बहुत टाइम है सत्संग आने में, चलो हम अंताक्षरी खेलते हैं. एंड अंताक्षरी खेलें तो 4-5 लोग थे बस वहाँ पर, जिनमें से वन वॉज मी एंड माई मासी, एंड देवर कपल ऑफ अदर संगत, एंड ऑल अदर वर दिस सेवादार. So in all, if I remember precisely, were 6 or 7 of people sitting over there. That was the first time I actually had such a close proximity with Maharaj without having the big sangat over there. हम वहाँ गए, हमने माथा टेका, और सॉरी मैंने गुरुजी ने बोला कि वो करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं. एंड he started, he just pointed at me after couple of people went sang कि तू गा. तो मैंने, no, he said तू लंबू दा गाना गा. एंड मैं हमेशा गुरुजी के सामने बहुत नर्वस हो जाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, और एक्चुअली मुझे उनकी लैंग्वेज भी नहीं पता चलती थी, बिकॉज वो बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे. आई अंडरस्टैंड पंजाबी, बट आई अंडरस्टैंड द मैनिपुलेटेड दिल्ली वाली पंजाबी, नॉट पंजाब वाली पंजाबी. एंड ही यूज्ड टू स्पीक रियली फास्ट, सो
it always used to bounce to my head. So there was always somebody to narrate me and help me what he's saying. So that time I think somebody said that he wants you to sing Amitabh Bachchan ka gana, that's Lambu, and I sang the song ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चल के. अभी मैंने शायद अपनी पूरी लाइन ख़त्म भी नहीं की होगी. गुरुजी ने बोला कि मैं तेनू कह रहा तू लंबू दे गाने गा, तू लता दे गाई जाती है. तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, दिस इज लंबू का गाना. तो somebody told me that's his way of complimenting you that you sing well. So small moments which I could actually recall कि कैसे महाराज एकदम माहौल बना लेते थे, you know. उनकी हमने नोटी हरकतें देखी हैं इस तरह की कि छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे, you know, संगत मेंबर्स को अपलिफ्ट करना अपने जोक्स से and what not. And one last sangat which I would like to share respecting the time of this forum is that and this one is also extremely close to my heart is so 2007 May my husband was here in US and I was there in Delhi. And all these years I used to just visit Delhi because I was working in Hyderabad. But that particular year he was supposed to be in Seattle. And I took a break from my work and I was doing my master's, so I went to my home, I mean in Delhi from Hyderabad. And that in 2007 में हम लोगों को because being a पुरानी संगत गुरुजी ने days allot किए हुए थे, so we were only supposed to go every Saturday, not any other day. तो हम लोग शनिवार का दिन था, हम लोग गुरुजी के दरबार में गए जस्ट लाइक दिस, जैसे हम लोग आते हैं. वी वर स्टैंडिंग इन द लाइन, हमने माथा टेका और हम लोगों ने जाते हुए आज्ञा ली. तो मैं थी और मेरे पीछे मेरी मदर इन लॉ खड़े थे और गुरुजी ने इशारा करके बोला कि कल आ जाएं. दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड. मे बी शायद तब तक थोड़ा टाइम हो गया था उनके साथ मिल के, तो मैं एकदम मुझे समझ में आ गया. गुरुजी ने मुझे इशारा करके बोला कि कल आ जाइयो. और मेरे कुछ प्लान्स थे ऑलरेडी फॉर दैट संडे. एंड while we were driving back home, I told my mother-in-law that Mama, I have plans, I don't think I can go. And she was quiet for a while and then only thing I remember she said is ki Komal, I was there, he didn't ask me to come. Never I have actually seen he has done this before with anyone, I mean at least in my witness. If he has said try if you can make it, right, I'm not going to impose on you, you are an adult, you have your own plans and what not. And I just, you know, kind of process that in my mind कि चलो ठीक है, I'll go to that place sometime, थोड़ा सा लेट चली जाऊंगी, I'll go पहले महाराज के पास दर्शन करके and then I will plan my rest of the day accordingly. So उस दिन मैं थोड़ा सा लेट पहुंची मंदिर. It was Sunday evening and मैंने गुरुजी को मत्था टेका और उस समय थोड़ा सा भी अगर आप लेट हो जाओ देन योर रेगुलर आवर्स, देन क्या होता था कि पूरा का पूरा वो जो एरिया था एम्पायर स्टेट का भर जाता था. एंड देन द सेवादार यूज्ड टू डायरेक्ट टू गो अपस्टेयर्स एंड नोबडी वांट्स टू एक्चुअली गो अपस्टेयर्स इंक्लूडिंग मी, बिकॉज सबको रहता था कि मैं यू नो गुरुजी के दर्शन होते रहे और सामने देखे. लाइक हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमें आज भी ग्रीड होता है दरबार के सामने बैठना है, बिकॉज दैट्स हाउ साइकोलॉजिकली आवर माइंड वर्क, राइट. सो हम लोग वहाँ गए और मैंने जैसे ही देखा कि आसपास कोई जगह नहीं है बैठने की, हाउ विल आई इवन स्क्वीज माई सेल्फ, आई एम नॉट अ पेटीट पर्सन, आई एम प्रोबेबली नीड अ सफिशिएंट प्लेस टू सिट ओवर देयर. तो गुरुजी ने जैसे बोला तो जो यहाँ पर 2-3 सेवादार संगत के लोग बैठे थे, उन्होंने जस्ट ट्राई टू स्क्वीज इन टू गिव मी सम स्पेस सो दैट आई कैन सिट. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली सैट वेरी नेक्स्ट टू गुरुजी. मैंने कभी गुरुजी के ऐसे चरण वगैरह नहीं दबाए, बस जितनी भी मेरी इंटरेक्शन है उसको समराइज करके मैं इस संगत में शेयर कर रही हूँ. नॉट दैट आई हैव बीन यू नो मल्टीपल टाइम्स विद हिम एंड सैट विद हिम एंड टॉक टू हिम. ये छोटे छोटे से ही एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे अपने पर्सनल हैं. तो मैं वहाँ पर जब महाराज के चरणों के पास बैठी तो द शब्द केम सदगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी. एंड द मीनिंग ऑफ द शब्द इज सो ब्यूटिफुल दैट साइया डोर हथों कड्डी ना मैं कट्टी जावांगी. तो ऐसा कभी नहीं हुआ एटलीस्ट इन माय प्रेजेंस कि कोई भी शब्द कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली 3 बार चलाओ. वो शब्द 1 बार चला, 2 बार चला और 3rd टाइम चला. एंड बाय दैट the third time when the actually Shabad started, I decided with my mind
आई एम नॉट गोइंग फर्दर, जहाँ मेरा प्लान था जाने का. आई डिसाइडेड कि दिस इज़ क्वाइट पीसफुल, आई डोंट वांट टू लीव दिस ऑरा एट द मोमेंट. आई जस्ट विद इन माई माइंड आई कैंसल्ड ऑल माई प्लान्स गोइंग फर्दर, and I think that was the best decision I did in my life. I sat there and I enjoyed the satsang throughout till the end when it went. तो क्या होता था, जब एम्पायर स्टेट में सत्संग ख़त्म हो जाता था तो हम लोग बाहर जाते थे. उसके बाद हम लोगों को जल प्रसाद दिया जाता था. जल प्रसाद लेके फिर हम आज्ञा लेके गुरुजी से विदा मत्था टेक के निकलते थे. तो उस दिन मन में ना सिर्फ एक छोटी सी बात आई कि गुरुजी मुझे ना कभी भी आपको टच करने का मौका नहीं मिला. एंड आई जस्ट सेड दैट. एंड जब हम लोग मत्था टेक रहे थे तो गुरुजी वाज सिटिंग लाइक दिस, ऐसे लाइक दिस. उनका एक पाँव ऐसे था एंड ही यूज्ड टू राइट पाँव को ऐसे बहुत तेज तेज हिला रहे थे, जैसे कोई बहुत अंदर से एंग्शियस होता है या कुछ एंग्जाइटी थी या वॉट एवर. बट आई कुड अंडरस्टैंड और आई कुडंट रिलेट एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल आई वांटेड वाज कि एक बार मैं ना जैसे हाथ लगा लूँ, जस्ट टच कर लूँ. कभी मौका तो नहीं मिला उनको चरण वो करने का. आई एम सॉरी. तो जैसे ही मैंने गुरुजी को कोशिश करी कि मैं उनके पाँव को टच करूं, तो उनका हाथ मेरे हाथ से मिल गया. And it was like a pinky promise. And I left without having anything in my mind. I was not emotional. I was actually happy, at a very happy state of mind when I left, like a baby having butterflies in the tummy, saying, "Oh my God, मुझे candy चाहिए थी, मुझे मिल गई." That was the thought. And I went. I left the darbar. So that was Sunday evening, Sangat ji. Wednesday I was in my lectures for my masters, and I used to have that old Nokia ka phone. We never used to have the WhatsApp and all those things at that point of time, and the only channel of having communication was either the phone or the text messages. So I received a text message from my mom saying, "Can you come back home? We need to go to Bade Mandir." In between my break, I called my mother and mother-in-law, I remember, and asked her, "Mama, what happened?" And she said, "Guruji ने महासमाधि ले ली है." And मुझे उसका मतलब नहीं पता था. So I said, "What do you mean by that? See, I only have a very little break. You need to be explicit and clear to me what's going on and कि क्या मतलब है इसका." And then she was being sophisticated in terms of not saying कि गुरुजी चले गए हैं. What she meant was कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है. मैंने कहा उसका क्या मतलब होता है मम्मा? Tell me in a human language what it is, right? फिर मम्मा ने बोला कि बेटा गुरुजी ना है नहीं अब. And then मैंने कहा, क्योंकि क्या होता था ना कि तब तक मेरे दिमाग में ये था कि वो भगवान है, right? और भगवान कैसे जा सकते हैं. So मुझे समझ नहीं आ रहा था कि what is she trying to communicate. And if I remember right, मैंने मम्मा को बोला मतलब क्या बोल रहे हो, गुरुजी चले गए दुनिया छोड़ के. मम्मी ने बोला हाँ तुम यही समझो और तुम बड़े मंदिर चलना है, तुम आ जाओ. संगत जी मैं वहाँ से अपने हेडफोन्स लगा के घर गई. वहाँ से हमने अपने ड्राइवर ने हमें बड़े मंदिर लेके जा. मुझे तब तक कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है. आई डोंट नो वाई, शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी रियलिटी को. बट द मोमेंट आई एक्चुअली एंटर्ड बड़े मंदिर और मैंने देखा जहाँ आज वहाँ समाधि बनी हुई है गुरुजी की, जब मैंने देखा कि लोग वहाँ पर कैंडल्स लगा रहे हैं, लाइक दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, इज दिस द ट्रूथ? मतलब हाउ कैन वी, आई वुड से explicitly we, not just I, have taken Guruji's for granted for life. मतलब हमने तो ये सोचा था कि हम जब भी जाएंगे वो सामने बैठे होंगे और जो मांगेंगे मिल जाएगा, right? It was that easy for us, accessibility. But how is that possible? But that was very, very, very emotional moment for me. I miss Maharaj even today in body form. I truly believe that he is there, but as a human being, if I don't see him, I feel restless. And I will admit the fact on this दरबार कि है गुरुजी यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं दिखते. हम इंसान हैं तो हमारी ग्रीड उनकी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा है. So later after when I came 2011-2012 in US and I connected to Seattle Sangat and I went to Usha aunty and MP uncle's
place at Guruji Niwas to started going to the satsang there. I remember it was my first satsang or the second satsang in Seattle when Usha auntie stood there and she said that Sudha auntie, who was actually taking care of the Empire Estate, told Usha auntie कि मैंने सुधा जिसको बुलाना था अपने लास्ट दर्शन देने के लिए, मैंने उस संगत को संडे को बुलाया था, and that was the Sunday he called me. And Usha auntie was like कि I'm so envy, he didn't call me, he called my sister. But you know संगत जी, उस दिन मुझे ना ये रियलाइज हुआ कि मुझे ही नहीं पता था कि I was precious to him. मैं क्या ही उनके लिए करूँगी, बट मुझे जोड़ने वाले जो मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने उनमें से भी किसी को नहीं बुलाया. It was just me from my family and sat next to him, did the pinky. I connected all the dots and I realized that I'm sorry, but I realized that it's not just that it's precious, it's अनबिलीवेबल कि वो मुझे क्या देना चाह रहे थे और मैं उनसे क्या मांग रही थी. तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि हर किसी की लाइफ में दुख है. आई एम मी स्टैंडिंग हियर होल्डिंग दिस माइक ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग डजंट मीन दैट आई एम नॉट वीक फ्रॉम इनसाइड. वी ऑल आर गोइंग थ्रू द बैटल ऑफ लाइफ. एंड सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर नहीं आप किसी से की मदद कर सकते तो इतना बस करो कि हम उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें. दैट्स ऑल. अगर हम इतना भी कर लेंगे ना, वी आर नोबडी टू एक्चुअली हेल्प एनीबडी ऑल्सो. बट इफ वी कैन, you cannot be a better person. Can I just sing 2 lines? Even though I'm extremely emotional, just coming to my head that this song summarized my life and my understanding about Maharaj and what I have learned. अभी मेरी आवाज़ बहुत काँप रही है because I'm being emotional, but I'll just try to sing this line. Try to understand what does that mean, and if only pray we can do is कि महाराज सिर्फ मेरी नहीं, इनकी नहीं, उनकी नहीं, सबकी लाइफ में जो भी कष्ट है प्लीज़ कोशिश करें हम सब मिल के एक दूसरे के लिए कि हम कैसे उसको दूर कर सकें. मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह आखांगी, मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगी, मैं घर खुदा दे जाके बालू मोमबत्तियां, ते मैं यीशु दे घर जाके रोज़ा तोड़ांगी. एक दा नाम है जपया, एक नो जप दिया, नानक दी धीहां तेरा तेरा बोलांगी. एक सार है पानी गंगा ते हर मंदिर दा, चादर दा सारा झगड़ा नहीं कोई अंदर दा. एक ही रुख दियां आपस विच शाखावां लड़दियां ने, ते मैं हर नफरत विच प्यार पतासा घोलांगी. नानक दी धीहां तेरा तेरा बोलांगी, नानक दी धीहां तेरा तेरा बोलांगी. जय गुरु जी.